I recently cleared the SSC CGL exam, and before that, I cleared the NTPC exams, both the levels, and the IB ACIO first year. After I completed my graduation final year, I seriously started to prepare, and I of course stumbled upon your channel on YouTube. It was purely coincidental. I just watched few videos and gave my first attempt, and it did not go very well because I had so less time to prepare. But the next attempt, I tried to give my best, and there were so many videos I took help from. So yeah, that's all about. So hi everyone, I'm Isha. I'm from West Bengal. So I recently cleared the SSC CGL exam, and before that I cleared the NTPC exams, both the levels, and the IB ACIO first year. I did not attempt the second year because it was clashing a bit with my mains exam. Something about your family or background. What was life like before you started the SSC journey? What were your subjects in 12th? What were your graduation like? I mean, tell me something about that thing. SSC हम discuss करेंगे आगे. Okay. So I was a commerce student in 12th. Though I had no interest, I was more inclined towards arts, but my parents wanted me to go with commerce, so I just went with commerce. After that, I took arts in college. I was a English literature student, and besides that, I was interning in a company to, meet my financial needs so that I don't have to burden my parents as well. So and simultaneously, I was also preparing for government jobs. That time, I was not very full-time preparing, so I did not do very well in those exams. But after I completed my graduation final year, I seriously started to prepare, and I of course stumbled upon your channel on YouTube. It was purely coincidental, but I just watched few videos and gave my first attempt, and it did not go very well because I had so less time to prepare. But the next attempt, I tried to give my best, and there were so many videos I took help from. So yeah, that's all about. So had you thought while you were doing your schooling or graduation that you would want to land up into SSC or any government examination? Were you very clear from the beginning? No, actually, I wanted to go with UPSC. I was, in fact, taking coaching, UPSC coaching, but it just happened that I wanted to just give one attempt. And after I gave one attempt, I wanted to make sure that the second attempt I just make it. So I wanted to just clear this exam and then focus on UPSC. So there was the thought that I want to go to government jobs. Alright. So where are you from, Isha, and who all are there in the family? I'm from West Bengal. There are almost four members in my family. My parents, my brother, and me. We have a small family. Alright. So you're the elder one, I believe. Yeah. Alright, great. And this was which attempt of yours in which you got success in CGL? This was my second attempt. Great. अगर initial 3 to 6 months में एक बच्चे को कैसे approach करना है, and if the person doesn't have any course, let us assume, okay, because course anyways give the guidance. अगर course भी नहीं है, बच्चा घर पे बैठ के self mode में prepare करना चाहता है, सिर्फ digital resources freely जो available हैं वो use करना चाहता है, approach कैसे करे exam को? सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्या डेली पढ़ने के बाद कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करें या फिर PYQ स्टार्टिंग में देखें या बाद में देखें? सो व्हाट डू यू हैव टू गाइड द स्टूडेंट्स ऑन, इशा? ओके, सो व्हाट आई डिड कि मतलब मुझे लगता है कि पहले हर किसी को एक मॉक तो लगाना चाहिए. लाइक प्रीवियस का क्वेश्चन लगा लो तो उससे हमें समझ आ जाता है कि वेयर वी स्टैंड, कि हमारी नॉलेज कितनी है और किधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. लाइक इंग्लिश में जनरली मतलब अगर कोई इंग्लिश मीडियम से पहले से है तो उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. थोड़ा बहुत अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, जैसे मुझे फ्रेजेस और क्लॉजेस वाला टॉपिक जो था थोड़ा सा खटकता था, तो मुझे वो टॉपिक करने की जरूरत पड़ी. तो अगर हम एक मॉक लगा ले तो हमें समझ आ जाता है कि ये टॉपिक मेरे बन जा रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है. तो और बाकी सेक्शंस में भी मुझे लगता है कि सेम ऐसे ही है. और अगर इफ देयर समवन जिसका बिल्कुल ही लेना देना नहीं है जीएस से, तो उसे फिर स्टार्ट करना होगा स्टार्टिंग से, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी एंड ऑल. मुझे लगता है वन शॉट्स आर मोर हेल्पफुल फ्रॉम यूट्यूब रादर देन कंप्लीटिंग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, बिकॉज दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और आजकल उसका वेटेज भी काफी कम हो गया है. सो वन शॉट वीडियोस बिल्कुल से काफी हेल्पफुल है. एंड
रीजनिंग एज वेल, मोस्टली रीजनिंग थोड़े कॉमन से ही रहते हैं, उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो उसमें भी आई थिंक इट इज़ डूएबल टू सम पॉइंट। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो खटक रहा है तो उसको अलग से प्रैक्टिस किया जा सकता है। इफ आई हैव टू टेल यू, मुझे 3 ऐसे कुछ मिस्टेक्स या फिर एरियाज ऑफ वीकनेस जो आपको लग रहा है आपने अगर अवॉइड किए होते, आपको पहले पता होता, तो थिंग्स वुड हैव बीन इवन बेटर, ऑल्दो दे आर ब्यूटीफुल नाउ, बट इवन बेटर। या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि मॉक एनालिसिस, इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। एंड मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे मैं एक मॉक देती थी और उसमें जैसे कोई क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे या फिर गलत हुए, तो मैं बस वो क्वेश्चंस को क्लिक करके उसका सोल्यूशन देख लेती थी या फिर उसको सेव कर देती थी कि मैं बाद में उसको रिवाइज कर लूँ। पर मैं पूरे पेपर को एनालाइज नहीं करती थी कि अच्छा ये क्योंकि बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे राइट हुए सारे मुझे पता थे। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो मैंने गेस वर्क में कर दिया, थोड़ा सा न्यूमोनिक से कोई कुछ हो गया जो कि मैं 1-2 बार और पढ़ूं तो शायद मुझे बाद में याद भी रहे, पर अभी मैंने बस ऐसे ही हो गया बस। तो मॉक एनालिसिस हैज रियली हेल्प मी। मैंने तो एक एक्सेल शीट बना रखी थी पूरी, तो उसमें काफी मतलब आई थिंक 600-700 मॉक्स की पूरी लिस्ट होगी कि ये मॉक मैंने दिया है डेट वाइज, ऐसे मेरे मार्क्स है। और फिर मैं खुद को रिमार्क्स भी देती थी कि अच्छा ये टॉपिक या फिर ये ऐसा स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं इसको कर लूंगी। एक्चुअली मैंने मतलब जैसे रूटीन नहीं बना रखा था, टू डू लिस्ट काइंड ऑफ बना रखी थी एवरी डे के लिए, और एक छोटा सा मतलब वीकली रूटीन बना रखा था कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक खत्म करने, क्योंकि मेरे मॉक्स में अटक रहे। तो एक ये मिस्टेक थी जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ओवरलुक किया था। तो और दूसरा आई थिंक लिमिटिंग द रिसोर्सेज, एज ही सेड कि 4 जगह से पढ़ने से बेटर है कि मेरे 1 या 2 ही रिसोर्सेज हो, तो वो काफी बेटर रहता है। एंड अदर देन दैट आई थिंक जैसे अगर हम लोग कोई एक टॉपिक कर रहे हैं, लेट्स से मैथ्स कर रहे हैं, कोई एक सेक्शन कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देना। लाइक मैंने जब स्टार्ट में मैथ करना शुरू किया था, तो जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, तो वर्कशीट पे वर्कशीट लगाते जाना। तो ऐसे करके हम लोग बाकी सेक्शंस को ओवरलुक कर देते हैं। उसकी वजह से मेरा जीएस काफी अफेक्ट हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो आई थिंक वी शुड कीप इन माइंड कि बाकी को भी थोड़ा टाइम दिया जाए, ये नहीं कि मतलब जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हिस्ट्री भी काफी मतलब वास्ट है, तो और काफी इंटरेस्टिंग है इंडियन हिस्ट्री, तो पढ़ते पढ़ते लगता है कि अच्छा ये देख लूँ वो देख लूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा एग्जाम सेंट्रिक होकर के पढ़ना बेटर रहता है। ऑलराइट, एंड आई मीन व्हाट डू यू थिंक, एक बार अगर हमें सिलेबस एक बार रन थ्रू करना है, तो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम टाइम फॉर इट? कितने मंथ्स के अंदर या कितना मंथ्स हमें लेना चाहिए एक बार सिलेबस को रन थ्रू करने के लिए, सो दैट उसके बाद अब आप अपनी मॉक्स की जर्नी, एनालिसिस की जर्नी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जर्नी पे आगे एक्सेल कर सको? आई थिंक 1 वीक इज काफी टू जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस. Not syllabus, the entire content. If I say, if you have to complete your math, reasoning, English and GS syllabus once, right? Okay, so is it कि आप 4 चैप्टर करते हो और फिर मॉक लगाते हो, ऐसा तो नहीं होगा. You must have completed a certain chunk or major segment of the syllabus, then only you would have started the mocks, right? Yeah. So what should be the optimum time in your opinion कि इतने में आप एटलीस्ट एक राउंड ऑफ the entire syllabus एक बार आप कंप्लीट कर लो? I think 4 to 5 months is enough कि इतने में आप अपना मॉक्स लगाना शुरू कर सकते हो. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे एक कोई मैथ्स का टॉपिक कर लिया, सर्कल्स कर लिया, तो उसका सेक्शनल मॉक लगा लेती थी टू सी कि मतलब मुझे चीजें याद है कि नहीं, मुझे फॉर्मूलाज बन रहे कि नहीं, क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं. तो इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि आई कांट वेट फॉर 4 months टू कंप्लीट माई एंटायर सिलेबस एंड देन सी कि होता है कि नहीं. तो सेक्शनल मॉक्स में लगा लेती थी, और जब मेरा काफी आई थिंक ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस हो गया था इन 5 months अराउंड, तो उसके बाद मैंने फिर पूरे मॉक्स लगाना शुरू कर दिए. So the concluding advice I would like to give the aspirants who are going to attempt the upcoming examinations is that give your 100%, practice lots and lots of mocks, analyze it and take rest. It is very important to take some rest.
बहुत बर्नआउट होता है, बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ाई करने में, वक्त मिले सो जाओ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कहीं घूमने चले जाओ, कोई मूवी देख लो, कोई छोटी सी सीरीज देख लो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसमें फंसे नहीं रह जाना है, फ्लो में नहीं रह जाना है. यू हैव टू कम बैक टू योर टेबल, यू हैव टू सिट एंड देन स्टडी, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स द अल्टीमेट गोल, राइट. और मोटिवेशन रहना चाहिए आप में, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड बहुत करनी है. मोटिवेशन के लिए कोई एक्सटर्नल वे जो ग्लेजिंग चलती रहती है सोशल मीडिया पे, उस पर मत डिपेंडेंट हुई. internal motivation is very very important, so stay motivated. I would advise talking to your parents, and आपको पता चलेगा कि इन्होंने आपको पढ़ाने में कितनी मेहनत करी है, काफ़ी स्ट्रगल्स रहे होंगे उनके भी. So yeah, stay motivated, stay blessed, and study hard. All the best to everyone. Thank you.